یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہی ہیں اور یہی رہیں گے، اور اس ہندوستان کے اندر جو فتنے اور جو فسادات پھیلائی جائیں گے ہم ان کا سنجیدگی سے مقابلہ کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام، صدر جمعیت علماء ضلع موریگاؤں حضرت مفتی مطلوب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، طلبہ عزیز اور میرے مسلمان بھائیوں، آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں 2 دن راشٹر دن کہلاتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ یہ 2 دن ہم مناتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی مناتے رہیں گے۔ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ پھر آزادی کے بعد ہندوستان میں اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کے سربراہ اور ذمہ دار ڈاکٹر امبیڈکر کو بنایا گیا، اور اس کمیٹی نے 26 نومبر 1949 کو پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اس سنویدھان کو پیش کیا، اور پھر 26 جنوری 1950 کو وہ سنویدھان اور ہندوستان کا وہ قانون پورے ہندوستان کے لیے نافذ ہوا۔ تو آج کے دن ہندوستان میں جو ہندوستان کا سنویدھان اور قانون ہے نافذ ہوا تھا، لاگو ہوا تھا، تو اس لیے یہ دن بڑی خوشی، بڑی اہمیت کا دن ہے، جس کی وجہ سے ہر سال ہم 26 جنوری منا رہے ہیں اور آئندہ بھی مناتے رہیں گے۔ ہم اس کے پیچھے کی پوری کارروائی کو سمجھیں گے کہ ہندوستان میں جب مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو دوسرے غیر مسلم بھی تھے، سب آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، پیار و محبت کی زندگی تھی۔ لیکن 7 سمندر پار انگریز ہندوستان میں 1601 عیسوی میں قدم رکھا اور ہندوستان کو غلامی کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو بنگال کے سراج الدولہ تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں انگریز قبضہ کرنا، اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ان سے پہلے بھی جو ان کے دادا تھے علی وردی خان، انہوں نے فورٹ ولیم میں جہاں پہ انگریز رہتے تھے حملہ کیا، تو فورٹ ولیم سے بھاگ کر پھر ڈائمنڈ ہاربر میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ الغرض یہ لڑائی 1757 سے شروع ہوئی ہے، اور پھر لڑتے ہوئے بکسر جو بہار میں پڑتا ہے وہاں پہ بھی انگریز سے مقابلہ ہوا، لیکن دونوں جگہ بنگال میں بھی اور بہار میں بھی انگریز کامیاب ہوا کہ بنگال میں 1757 میں سراج الدولہ کو ان کی سلطنت مرشد آباد میں شہید کیا، اور پھر بکسر میں جا کر بھی ان کو کامیابی ملی۔ تو یہ انگریز بہار، اڑیسہ، بنگال کو فتح کر چکا تھا، آگے دکن کا ارادہ تھا کہ وہاں سے بھی ہم ہندوستان کو فتح کریں گے اور ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ لیکن دکن میں جس کو شیر میسور کہا جاتا ہے، ٹیپو سلطان جن کی بہادری اور جن کی شجاعت مشہور ہے، اور جن کو آج ناسا راکٹ مین سے یاد کرتا ہے، راکٹ مین، کہ جیسا کہ ڈاکٹر عبدالکلام کو میزائل مین سے پکارا جاتا ہے، میزائل مین ان کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ناسا ہے انہوں نے ٹیپو سلطان کو راکٹ مین کہا ہے۔ تو انہوں نے انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ، جو بھی حربہ ہونا چاہیے تھا اختیار کیا، اور ٹیپو سلطان ہی نہیں بلکہ جو ان کے والد تھے حیدر علی صاحب، انہوں نے بھی کافی دنوں تک انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور پھر ٹیپو سلطان نے جو مقابلہ کیا ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، کہ انہوں نے جو قربانیاں دی اس سلسلے میں، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا،
आखिर में अपनी जान भी इस हिंदुस्तान के लिए शहीद कर दी। ये वो शख्सियत थी और इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई चलती रही। हम उनको शुमार नहीं कर सकते हैं कि इतने हजरात ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की है, लेकिन हम आखिर में जो देवबंद के सिपह सालार और देवबंद के मुजाहिद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी है, उन्होंने जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, आज तारीख में उनको याद किया जाता है। हम तलबा को, अपने मुसलमान भाइयों को और तमाम हिंदुस्तानियों को ये बतलाना चाहते हैं कि हम आज हिंदुस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, हिंदुस्तान को जो आजाद करने वाले हैं, हमने उनको भुला दिया है। कुछ ही लोगों के नामे हमारी जबान पर है। हम सिर्फ मुसलमानों में डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही को जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही को, जबकि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमने यानी मुसलमानों ने 100 साल तक कुर्बानियां दी है और उलमा की कुर्बानियां इतनी ज्यादा है कि आज अगर लिखी जाए तो तारीख की किताबें उससे भरी जाएगी। इतनी उलमा की कुर्बानियां हैं। हम उन उलमा की कुर्बानियों में सबसे पहले 1857 की लड़ाई को शुमार करते हैं, जबकि उनसे पहले भी उलमा ही वो तबका है जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हर तरह की कुर्बानियां पेश की है। ये वो तबका है और याद रखिए, ये उलमा का तबका आइंदा भी कभी हिंदुस्तान पर अगर कोई आंच आता है तो सामने खड़ा होगा और हिंदुस्तान का मुकाबला करेगा। ये वही तबका है। हम तारीख को पलटे और इब्तिदा से लेकर इंतहा तक देखें कि अगर मुसलमानों को कामयाबी मिली है और मुसलमान जो है को हिदायत मिली है और मुसलमानों को सही रास्ता मिला है और मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के तरीके मिला है और मुसलमानों को शहरियत मिली है, मुसलमानों को रहने का हक मिला है, तो वो उलमा की कुर्बानियां हैं। हम तारीख को पलटे, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस आजादी से पहले भी जब हिंदुस्तान के हालात खराब हो गए, हिंदुस्तान 2 गुटों में तकसीम हो गया, तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पेश हो गए थे, जिनमें चुन चुनकर मुसलमानों को मारा जाता था। 5 लाख मुसलमानों को मारा गया, दिल्ली में कई लाख मुसलमानों को मारा गया था और ये वो फिरका परस्त थे और ये मुसलमानों के दुश्मन थे जो मुसलमानों को मार रहे थे। लेकिन उस मौके पर अगर मुसलमानों की हिफाजत की है तो उलमाए किराम है। आज हम मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जैसे पुकारते हैं, उसी तरह एक मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेहरवाई रहमतुल्लाह अलैह है। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेहरवाई ने मुसलमानों की हिफाजत के लिए हर तरह के मंसूबे अपनाए। जब दिल्ली के बहुत सारे मुसलमान जब जो है जाए मस्जिद के इलाके में आ गए और लाखों की तादाद में मुसलमान वहां पर रह गए और जहां उनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, वहीं पेशा पाखाना करते थे, ऐसे निकल भी नहीं सकते थे बाहर। मुसलमानों को मारने के लिए जो मुसलमानों के दुश्मन थे वो तैयार थे। ऐसे मौके पर जो मुसलमानों की जान की हिफाजत की थी वो हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेहरवाई रहमतुल्लाह अलैह की है। और फिर हमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आज मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हम पुकारते हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कहा और उन्हीं की कुर्बानियां थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान रहे और ऐसे नहीं बल्कि बाई चॉइस रहे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को मुंतखब किया और हिंदुस्तान में रहने को ही पसंद किया और हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजारने का जो मंसूबा था वो पूरा तैयार किया कि हम यही के हैं, यही रहेंगे, हम यहां से कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे रहना किसी की वजह से नहीं है बल्कि अपने चॉइस की वजह से है। हमने हिंदुस्तान में रहा और हिंदुस्तान के लिए जो कुछ करना था हमने किया। हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और हिंदुस्तान की तामीर के लिए, हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमने पहले भी कुर्बानियां दी है और आइंदा भी हम इसके लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं और रहते हैं।
जब भी हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो हम उसकी आंख को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हम उसके हाथ तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसकी कमर तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह हमारा वतन है, हम यही है और यही रहेंगे। और इस हिंदुस्तान के अंदर जो फितने और जो फसादात फैलाई जाएंगे, हम उनका संजीदगी से मुकाबला करेंगे। और इस देश को जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, जहां हमेशा से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहकर आए हैं और एक साथ रहेंगे, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बाकी रखेंगे और हमेशा रहते आएंगे। लिहाजा इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां पेश करनी होगी वो हम पेश करेंगे। अलगर्ज हम बताना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो हिंदुस्तान का कानून बनाया गया, वो कानून जो नाफिज हुआ वो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। उसी दिन की खुशी में और उसी दिन की अहमियत में हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने पेश की गई। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुजाहिदीन हैं उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और उनके अपने बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।